respected Abhijit Barua, Co-Chairman, CII Northeast Council, respected Arvind K. Garg, Chairman, CONMEC 2017, respected Anand Sundar San, President ICMA, respected other dignitaries of the dais, and respected representative from all over the country and media friends. Today, I have specially come here to congratulate CII for bringing all the major players in the construction equipment and machinery segment of the country. And this is a great opportunity for the people of Assam and Northeast, because this region, with the blessing of our Honorable Prime Minister, has now started to grow. We are going to have so many flagship programs, particularly in the sector of infrastructure building, to develop the connectivity in the entire region. You have all come to know in the recent past on the direction of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, who always believes that if the country has to shine, then the growth of Northeast is must. Without the development of Northeastern state, India cannot grow, India cannot prosper. So that is why he has put on the top of the agenda for the special and speedy growth of Northeast. And that is why he has directed all the Union Ministers to pay visit to the Northeastern state with proper scheme, and all the schemes have to be implemented within time frame. So that's the agenda he has made very clear to the people of the country. In his maiden speech as a Prime Minister in the House of Lok Sabha, he has also clarified his standpoint that considering the availability of the resources in the region, particularly in the natural sector, we have beautiful environment, beautiful landscape, all the resources available in this natural sector. That is why he has set his agenda very clear that Northeast will be made as an organic hub of the nation. So now, to make all this dream fulfilled, we'll have to go practically to meet the requirement of the people of Northeast in the communication sector, road communication, air communication, waterways communication, and railway communication. In all these four key sectors, now Government of India has given so many programs for the people of Northeast. आपको मालूम है कि सरायघाट की जो ब्रिज इनॉग्रेट करने के लिए हमारी देश की ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, सरफेस मिनिस्टर मिस्टर गडकरी जी कुछ दिन पहले आए थे। उन्होंने यहाँ हम जनताओं को स्पष्ट बताया, देशवासियों को स्पष्ट बताया कि
तो इसलिए मैं आसाम और नॉर्थ ईस्ट की जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्वतंत्रता के पिछले 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार के लिए हो रहा है। सिर्फ रोड सेक्टर में नहीं, ब्रह्मपुत्र as one of the major river in the country. During the British regime, this was a major waterways connecting Bay of Bengal, selling out our local product in the global market. Tea, timber, coal, and oil. During the British regime, our Digbur refinery was established in 1889. Our production took place, I believe, in the past part of 20th century. Then, coal was extracted by Assam Trading Company. That was also during that time, contemporary time. And also, the first tea garden was set up in Jaipur, Upper Assam in 1830. I believe you are all well close to this kind of important eventualities of our economic background. So we have got the ability to become one of the top states in the country. Because during British regime, we were, I think, out of the 5 best states, we were one of them. Now, in the last, I believe, 5-6 decades, this has never been addressed properly, taken up on the top of the agenda. Now, Modi ji has determined that this particular region has to be developed. And for this development, the government of India has given so many projects in the recent past. Even in the railway sector, Prabhuji has already announced 27,000 crores will be utilized for the railway network in the northeast. So that way, many more funds it's coming from the different schemes. Now the question of proper implementation of those schemes within a time frame. In this regard, we need your support. Whatever construction houses we have in that region, they will have to be supported by supplying most modern equipment. I think it is you who could provide all this support. And just I was telling Mr. Garg ji को मैं बोल रहा था कि देखिए आप भी हमारे यहाँ अगर ये जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री आप यहाँ अगर आप खड़ा करेंगे तो हमारे कंस्ट्रक्शन हाउस के लिए बहुत बड़ा फायदा। गार्ग जी का कहना है कि यहाँ हमारे काफ़ी कम्युनिकेशन में दिक्कत है और रॉ मटेरियल्स में भी काफ़ी दिक्कत है। ऐसा उन्होंने कठिन परिस्थिति के बारे में उन्होंने जिक्र किया। तो मेरा अभी भी आप लोगों से यही अपेक्षा है कि आप लोग देश के अलग अलग कोने से आए हुए हैं। असम के लिए, उत्तर राज्य के लिए बहुत बड़े एक सुनहरा मौका है हमारे इलाका को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारी भारत सरकार की तरफ से इतना मदद हमें कर रहा है, तो उसके बदले में अगर हम सही समय कंस्ट्रक्शन को अगर खड़ा कर पाया तो हमारी नई पीढ़ी हो या आम जनताओं को ऐसा लगने लगेगा कि देश प्रगति कर रहा है और हमें भी आगे जाने के लिए सरकार मौका दे रहा है। तो इसलिए इस अनुभूति को जगाने के लिए मुझे लगता है कि हमको एक साथ मिलकर काम करना होगा। और मोदी जी ने हमें यही कहा है कि असम को अगले 2019 तक हर गांव, जिस गांव में 250, 500, 1000 पॉपुलेशन है, अलग अलग कैटेगरी का, प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना के तहत उसको जोड़ा जाए। That construction work will have to be completed by 2019. और उनके लिए 8,000 करोड़ व्यवस्था उन्होंने किया है। तो इसलिए पैसों का कोई कमी नहीं है, सिर्फ काम करने के लिए हौसला चाहिए और व्यवस्था चाहिए। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिलसिले में आप हमें इक्विपमेंट दे सकते हैं और ऐसा इक्विपमेंट
तो सिर्फ देश का इकोनॉमी ये नुकसान होता है ऐसा नहीं, आम जनता भी निराश हो जाती है। तो आम जनता को हौसला बढ़ाने के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए, साहस देने के लिए और कठोर मेहनत करने के लिए हमें जो कम्युनिकेशन नेटवर्क अभी देना जरूरी है, इस विषय पर हम सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। तो इसलिए आप लोगों से यही आवेदन है, आप भी इस विषय पर विशेष रूप से ध्यान दें। अगर ध्यान देंगे सब संभव है। अभी देखिए ब्रह्मपुत्र का जो रिवर बेड अभी पहले जैसा है नहीं, तो इसके लिए उनका वाटर रिजर्वर कैपेसिटी घट गया है। उसको बढ़ाने के लिए और नेविगेशन में उसको मजबूत बनाने के सिलसिले में अभी हमारे केंद्रीय सरकार सर्विस मिनिस्ट्री की तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि ब्रह्मपुत्र को फ्रॉम सदिया टू धुबरी अप टू बांग्लादेश बॉर्डर इसको ड्रेजिंग किया जाएगा। सदिया से जोरहाट तक 300 किलोमीटर 2 मीटर तक और जोरहाट से धुबरी तक 2.5 मीटर ड्रेजिंग किया जाएगा। तो नदी का ड्रेजिंग करने के लिए एक ऐसा इक्विपमेंट हमें लाना होगा, कैसा जहाज लाना होगा। जैसे मैंने देखा विशाखापट्टनम में LNG ने वहाँ इनर हार्बर प्राइवेट सेक्टर में डेवलप कर रहा है। इसके लिए हमारे कार्गो शिप को काफी सुविधा हुआ है लोडिंग अनलोडिंग में। तो ब्रह्मपुत्र में अगर हम ऐसा माहौल हम बना सके तो अगले दिनों में वाटरवेज, आपको भी मालूम है, मुझे ये आंकड़ा बताया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, अगर कोई चीज हम वाटर से लाए तो उसमें 50 पैसा लगता है, और उसी सामान अगर हम सड़क से ले जाए तो वहां 1.5 रुपया लगता है, और उसी सामान अगर रेलवे ट्रैक से ले जाए तो 1 रुपया लगता है। यानी कि सीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन है वाटरवेज। तो ब्रह्मपुत्र का हम अपने प्रगति के लिए सही दिशा में इसको इस्तेमाल करने के लिए मुझे लगता है कि इस विषय में भी आप लोगों को ध्यान देना होगा। तो अभी भारत सरकार ने तो मन बना दिया, इसके लिए हमें इक्विपमेंट चाहिए, जहाज चाहिए, और साथ साथ में जो बालू यहाँ से डिस्प्लेस किया जाएगा ड्रेजिंग की वजह से, दोनों तरफ बालू का पहाड़ बनेगा 840 किलोमीटर 840 किलोमीटर। उसी बालू का पहाड़ ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस हाईवे बनाने का भी केंद्रीय सरकार ने निर्णय किया। इस विषय पर हम लोगों ने, केंद्रीय सरकार ने हमें आदेश दिया गया है कि राज्य सरकार की तरफ से इसको सर्वे किया जाए। तो हम लोगों ने 16 एक्सपर्ट ग्रुप अभी काम में लगा दिया। ब्रह्मपुत्र साउथ बैंक एंड नॉर्थ बैंक दोनों अभी जो मॉडर्न वैज्ञानिक पद्धति से इसका सर्वे शुरू किया है। तो अगले दिनों में जो भी काम हमें खड़ा करना होगा, तो इस विषय पर आप लोगों को बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आगे हम लोगों ने भी अपने बजट में कई व्यवस्था रखा है। तो हमारे जो मोदी जी का सपना है, एक्ट इस पॉलिसी को लागू करना है। पहले गुल्लू की, अभी इसको एक्ट में देखने से नहीं चलेगा, कुछ करना हो। दूसरे काल जैसे बोला, अबाउट से भी हार्ड वर्क ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इतना महत्वपूर्ण बात उन्होंने रखा है हमारे नई पीढ़ियों के लिए, हमारे युवा के लिए, युवा शक्ति बढ़ाने के लिए, देश का जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए। मुझे लगता है कि इस सेक्टर में भी हमें ऐसे ही काम करना होगा, और उत्तर पूर्व राज्यों का साथ साउथ ईस्ट एशिया का रिश्ता, बिजनेस रिलेशनशिप, उसको डेवलप करने के लिए अगले दिनों में अलग अलग स्कीम लागू किया जाएगा। तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि गुवाहाटी सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का गेटवे नहीं, गुवाहाटी साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे बने। तो इसके लिए हम लोगों ने इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर खड़ा करने का निर्णय किया है। पैसा भी हमने इसके लिए रखा है। तो इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर का कैसा रूपरेखा होगा, इस विषय में भी आप लोगों को अगले दिनों में सहयोग करना होगा। हम उसको ग्लोबल टेंडर में जाएंगे इंटरनेशनल ट्विन बिल्डिंग के रूप में, और जिसमें हम विल गिव स्पेस टू द ग्लोबल एंड नेशनल इंडस्ट्री टू draw the attention of the people of the world. So Guwahati will be made one of the important global business center. So with that aspect, we have developed our mindset and also vision. So साथ साथ में जैसे बिजनेस में हमारे
जो भी इंटरेस्टेड ग्रुप है उनको सुविधा देने के सिलसिले में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सिलसिले में हमने अपना कदम उठाया। हमारा पहले सेशन में उसको पास किया है। तो जैसे हमने पतंजलि प्रतिष्ठान को 1 सप्ताह के अंदर उनको जमीन दिया और उन्होंने अभी कल मुझे बताया उनकी जो लक्ष्य है अगले दिनों में 20,000 करोड़ का उनका उत्पादन होगा। बाबा रामदेव ने आके यहाँ सब लोगों का बस अपना बात रखा। ऐसा एक विजन प्लान उन्होंने डेवलप किया और हम भी चाहते हैं कि असम में ऑर्गेनिक सेक्टर में हम तरक्की करें, क्योंकि विदाउट अफेक्टिंग आवर इकोनॉमी, विदाउट अफेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट, वी वांट टू ग्रो द ग्लोबल। सो इस सिलसिले में आप बालीपड़ा में उनका उत्पादन शुरू होगा बिफोर 31st of March, and this should be one of the most exciting example how Assam has set its agenda clear for your expedient growth with the blessing of Honorable Prime Minister Narendra Modi. दावर ने उसी हिसाब से दावर ने भी अपना प्रोडक्शन शुरू करने का फैसला तय किया है और 31 मार्च के पहले दावर का प्रोडक्शन शुरू होगा। यानी कि हार्डवेयर स्टेट बनाने के सिलसिले में ये एक नमूना हम खड़ा किया है। तो मुझे 12 बजे एक बैठक में जाना भी है, तो आप लोगों ने बुला दिया, दुर्वाजी आए थे, आप लोगों ने बुलाया, आपसे मिलने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे जुड़ते रहे, ऐसा नहीं कि किसी इवेंट में आया और भूल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा रिश्ता मजबूत होना चाहिए। We'll have to work hand in hand to meet the expectation of the people of this part of the country, because this is a very vital part. As you know, strategically we are located in a very sensitive zone. आपको मालूम है हमारे पड़ोसी देश कौन-कौन है, तो इस विषय पर अगले दिनों में हमें नई पीढ़ियों को ऐसा सपना जगाना होगा, ऐसा उम्मीद जगाना होगा ताकि वो भी तरक्की करे, मेहनत करे और आप अपनी तरफ से जो संभव वो आप हमेशा हमें देते रहे। इसी शब्दों पर मैं अपना भाषण को आराम देना चाहता हूँ। Thank you so much and for your kind